Welcome again, students. Now my second lecture on the set theory. Last lecture I defined what is the set theory and what is the main type of set theory and how to a set define in roster and set builder form. So before starting off next topic, I want to revise first lecture. So this is first lecture where I define the multiple topics, set theory, type of set, and the subsets. So last time I defined set is a collection of the defined objects, and every set defined is a capital letter, and elements defined in a small letters. And every elements have a same characteristic. That means the characteristic and well-defined objects. So that is a set. When object is not well-defined, that means that is not a set. So set represented in two forms. The first is a roster and the second a set builder form. When the data is represented in a braces and in term of the comma, that is a roster form. And when the we define in the term of property form, in this that is set builder form, where we define what is the property of elements, then that is called be a set builder form. So two types of the formulation of set is set builder form and roster form. I again define is a three type of sets. First is the empty set, where is a no elements in a set is called be empty set. Singleton set, when is a one element in the set is called be singleton set. When the elements is counted, that is a finite set. When the elements is not counted, not listed, that is an infinite set. The same things, equivalent set, when the equivalent set with the cardinal numbers are the same, means the values of numbers in the term of the when the equivalent set, if the cardinal numbers are same, that means a number of elements are same, but the elements are different. That is a equivalent set. Just like an example of 5, 10, 15, 20, that is a number of product of 5, and a I, U is the alpha is the vowel so in the alphabet. So that is that so different sets, but its number of elements are equal. That is the equivalent set. When the elements are equal and members and the set is the same element, that is called be a, when the set are similar and the elements also are similar, that is called be equal set. Just like in a is a set of even natural number, so natural number even natural number, so 2 4 6 8, and a b also is a mention is a 2 4 6, that are both are the same, that means that are the equal set. नाउ नेक्स्ट इज सबसेट्स की ऑलरेडी हम जो डिस्कस कर चुके थे कि व्हेन जब ए के एलिमेंट्स बी में ऑलरेडी होते हैं इन द सेम होते हैं, तो दैट इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, एंड बी जो होता है वो हमारा सुपर सेट होता है. और इसमें एक बात ये भी हुई थी कि इम्पिटी सेट हमेशा क्या होगा, सबसेट होगा किसी भी सेट का, और सेट अपने आप में ही सेट होगा. अगर हमें ये जानना है कि कितने नंबर ऑफ सबसेट्स हैं किसी भी फाइनाइट सेट के, तो हम उससे 2 की पावर n का फॉर्मूला यूज करते हैं. एन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पर्टिकुलर सेट. तो इसी तरह से हमने प्रॉपर सेट यूनिवर्सल सेट की बात कही थी, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्यूशन करवाया था कि जब हमारे एलिमेंट्स हों, एम और एन एलिमेंट है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि 56 मोर देन है, तो हम किस तरह से एम और एन को वैल्यू निकालेंगे. इसके बाद कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स थी, होपफुली आप लोगों ने सॉल्व किया होगा. हाँ. अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम इस लेक्चर को डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज ऑपरेशन इन द सेट. जो मेन इंपॉर्टेंट ऑफ द सेट थ्योरी में होता है वो दो चीजें होती हैं, दैट इज द फर्स्ट इज द ऑपरेशन एंड सेकंड इज द वेन डायग्राम, जो फुल फ्लैश डिफाइन करती हैं कि सेट्स को हम क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूज सेट इन मैथमेटिकल टर्म एंड हाउ इट इज अ डिफरेंट इन अ सिंपल मैथमेटिक्स. तो अगर हम ऑपरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीज़ें आती हैं. और पहला यूनियन और सेकंड इज इंटरसेक्शन. यूनियन को हमेशा हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड यूनियन रिप्रेजेंट इज कि हम सारे जो भी एलिमेंट्स हों उनको कंबाइन फॉर्म में लिखें. तो इन द टर्म ऑफ लॉजिकल में अगर हम डिफाइन कर रहे हैं यूनियन सेट को, तो हम उसको हम और से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे यहाँ पे यूनियन में ऑलरेडी लिखा हुआ है द यूनियन ऑफ टू सेट ए बी डिनोटेड ए यूनियन बी. तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स होते हैं ए और बी में, या दोनों में जो भी एलिमेंट्स होते हैं, वो हम यहाँ पे ए यूनियन बी में लिखते हैं. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर ए और बी के दोनों एलिमेंट्स अलग अलग हैं तो उनको हम कंबाइन फॉर्म में लिखते हैं. बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो ए में भी हैं और जो बी में भी है, तो हम उसको सिंगल टाइम में ही लिखते हैं. तो अगर जैसे हम इन टर्म ऑफ लॉजिकल की बात करें, तो लॉजिकल में जब हम बात कर रहे हैं तो ए यूनियन बी को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एलिमेंट से. जो एक्स एलिमेंट है वो ए को भी बिलोंग करेगा, और वही एक्स एलिमेंट बी को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ये यूनियन की बात हो रही है.
तो जब हम x बिलोंग टू a यूनियन b लिखते हैं तो हम x बिलोंग a और x बिलोंग टू b लिखते हैं, क्योंकि जब भी हमारा यूनियन रिप्रेजेंटेशन होता है तो यूनियन को हम और से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम कोई भी ऐसा एलिमेंट जो नॉट बिलोंग के टर्म में लिखा जा सकता है, जैसे x नॉट बिलोंग a यूनियन b, तो इसका मतलब हुआ है कि x जो है वो a में भी नहीं है और जो x हमारा है वो b में भी नहीं है। तो इस टर्म में जब a बिलोंग का वाला कंडीशन होता है, नॉट बिलोंग कंडीशन होती है, तो ये कन्वर्ट होके और कन्वर्ट होके एंड में आ जाता है। इसका मतलब है ये बात इंटरसेक्शन की करता है। तो जब हमें और टू एंड कन्वर्ट करना होता है तो हमें ये देखना होता है कि नॉट बिलोंग का साइन लगना होगा। दैट इज अ लॉजिकल, जो आगे हमें डिफरेंट थ्योरीज को समझने में हेल्प करेगा। इसी तरह से मैंने एक एग्जांपल ऑलरेडी मेंशन किया है कि लेट ए इक्वल टू है आपके एक्स इज अ प्राइम नंबर, एस कोलन एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 सॉरी। तो लेस देन 10 जितने भी प्राइम नंबर हैं, जैसे आपका प्राइम नंबर है आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7, 1 इज नॉट बी अ प्राइम नंबर, सो हम 2 से ही काउंट करते हैं। 2, 3, 5, 7, 10 से जो भी लेस देन है, तो दैट इज अ रिप्रेजेंट ऑफ प्राइम नंबर जो 10 से नंबर कम है। और यहाँ बी सेट दिया हुआ है एक्स बिलोंग टू एन, मतलब एक्स जो होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे, इज अ फैक्टर ऑफ 8। 8 के फैक्टर होंगे, तो 8 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और इसके अलावा 4 होगा और 8 होगा। तो ये दोनों आपके दो आपका ये इन द टर्म आप सेट हो गए। तो जब हम इनको ए यूनियन बी के टर्म में दिखाते हैं तो आप ये देखेंगे कि ए में जो है वो 2 है और बी में भी ऑलरेडी 2 है। ठीक है, तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है, बट हम जब इन दोनों का यूनियन करते हैं तो 2 को हम सिंगल टाइम लिखते हैं। एंड जो भी हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है, जो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनको हम साथ में कॉमा के टर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा यूनियंस का मेन मोटो यही होता है कि हाउ टू कंबाइन, हाउ टू यूनाइज, फॉर्मुलाइज इन द टर्म ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। 2 सेट्स की बात हो, 3 सेट्स की बात हो, 4 सेट्स की बात हो, तो ऑल में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों कंबाइन हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है सेट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सेट की बात करते हैं। यूनियन में हम क्या करते हैं, दैट इज जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कंबाइन करते हैं और कॉमन एलिमेंट्स को हम सिंगल टाइम लिखते हैं। बट इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट जो कॉमन है उसको हम सिर्फ यहाँ पे डिफाइन करते हैं। मतलब अगर ए इंटरसेक्ट बी है तो ऑल एलिमेंट्स दैट आर बोथ इन ए एंड बी, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगा। दिस इज सिमिलर टू द लॉजिकल एंड। जब भी हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा लॉजिकल जो वर्ड होता है दैट इज अ टर्म ऑफ द एंड। तो जैसे यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं कि ए और बी है, तो उनका इंटरसेक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इज डिफाइंड। सो द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ एंड ए बी, तो जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे वो दोनों में कॉमन होंगे, मतलब ए और बी में दोनों एलिमेंट्स कॉमन होंगे। तो हम अगर लॉजिकल के फॉर्म में देखें तो ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। मतलब इंटरसेक्शन की बात हो रही तो इंटरसेक्शन को हम एंड से लिखते हैं, तो इसलिए जब हम इसको ओपन करना चाहें तो एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, जहाँ यहाँ पे अलग अलग हमने कर दिया, पहले हमने साथ में ही रिप्रेजेंट किया था, बाद में हमने अलग अलग कर दिया। जब हम नॉट बिलोंग की बात करेंगे तो नॉट बिलोंग का मतलब होता है ये एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक्स नॉट बिलोंग ए और एक्स नॉट बिलोंग टू बी। तो ये एक लॉजिकल फॉर्म है, हमेशा याद रखना पड़ता है। जब भी हम नॉट बिलोंग का साइन लगाएंगे उसके साथ हमारा एंड जो कन्वर्ट हो जाएगा और में, अगर और हमारा बिलोंग कर रहा है और हमें नॉट इंटरसेक्शन इन द टर्म लगा रहे हैं, तो नॉट बिलोंग का टर्म लगा रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा एंड में। तो एक एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, जैसे ए की वैल्यू आपको देखा, ए जो सेट है वो 1 3 5 7 9 है, दैट इज अ ऑड नंबर ऑफ सेट, एंड बी जो है आपका इज अ कॉमन नंबर है, जैसे 2 3 5 7 11 13 है। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज अ ए इंटरसेक्शन बी, तो आप ये देख रहे होंगे जो वैल्यूज है, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, तो दैट इज अ कॉमन एलिमेंट जो दोनों में है, 3 5 7। तो 3 5 एंड 7 इज अ कॉमन एलिमेंट, सो जो इंटरसेक्शन होगा वो आपका क्या होगा, 3 5 7 है। ठीक है, इसके अलावा जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका दूसरा एग्जाम्पल ऑलरेडी मेंशन है, इफ ए इजकल टू 2 4 एंड बी इजकल टू 3 5, तो फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो वैल्यूज हैं आपकी, जैसे ए की वैल्यू 2 4 है, बी की 3 5, तो दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन वैल्यूज नहीं है, कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। तो जब वैल्यूज कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कोई भी इंटरसेक्शन वैल्यूज सेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन कोई भी चीज नहीं दे रखी है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन एलिमेंट्स नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आपको देखने की जरूरत है कि ये ब्रैकेट
जब ये ब्रैकेट का साइन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने की जरूरत पड़ती है कि ब्रैकेट का साइन क्या लगा है। तो ये जो ब्रैकेट्स का साइन है, ये देखिए ये अंदर की तरफ क्लोज नहीं हो रहे, बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो बाहर की तरफ जाने का मतलब है कि 2 और 4 नहीं होंगे, बाकी सारे होंगे। तो 1 3 5 7 सब कुछ होगा। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट नहीं, ये ओपन ब्रैकेट का यूज हुआ है। और यहाँ बी में जो है वो क्लोज ब्रैकेट का यूज हुआ है 3,5। तो ये ब्रैकेट का साइन भी इंपॉर्टेंट लगता है कि हम क्लोज ब्रैकेट यूज कर रहे हैं कि ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ पे जो ओपन ब्रैकेट है इसका मतलब है 1 3 5 ये सब होंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके 2 4 और 3 5 में, तो यहाँ पे आपका का जो आ जाएगा एलिमेंट वो 3 और 5 आ जाएगा, 3 और 4 आएगा। ओके तो यहाँ पे जो भी कॉमन एलिमेंट है वो 3 और 4 है। इसमें भी आप ये देख रहे होंगे एक ब्रैकेट यहाँ है, एक ब्रैकेट ओपन कर रखा है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरसेक्शन में कि ब्रैकेट्स का साइन किस तरह देगा, क्लोज ब्रैकेट की ओपन ब्रैकेट्स। ओके तो सो ये हमारा यहाँ पे डिफाइन द टर्म हो गया। जब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेट कॉम्प्लीमेंट की, सेट कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? जब हम दो ऑपरेशंस की बात करते हैं उसके बाद थर्ड ऑपरेशन हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि ऐसी जो वैल्यूज, ऐसे एलिमेंट जो ऑलरेडी ए में है बट नॉट अ रिप्रेजेंट ऑफ ए से, ए के बाहर, ए से अलग है। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है था नॉट ए, मतलब ए नहीं है, ए के अलावा। सो कॉम्प्लीमेंट इन द टर्म है जैसे कि आपका जैसे ए की वैल्यू अगर कोई भी यूनिवर्स है 1 to 10, तो ए की वैल्यू अगर 2 और 4 है, तो जितने भी एलिमेंट जो ए में नहीं है दैट इज अ ए कॉम्प्लीमेंट। तो नॉट अ ए, set of all elements not in A, that is called be A complement. The complement operator is similar to a logical not and is reflexive, that is A double complement is equal to A, क्योंकि डबल कॉम्प्लीमेंट का टर्म हो जाता है तो डबल कॉम्प्लीमेंट हमेशा A ही रिप्रेजेंट करेगा। डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस मतलब मींस होता है आपका चीजें माइनस करना। तो जैसे सेम इज मैथमेटिकल बैकग्राउंड में होता है, जो भी वैल्यूज होती हैं वो माइनस होती हैं। तो अगर a माइनस बी की बात करें, a डिफरेंस b की बात करें, तो ऐसे एलिमेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इन a विद दोज दैट आर इन b सब्ट्रैक्ट आउट। मतलब जो एलिमेंट a में है और जो एलिमेंट b में है उसमें सब्ट्रैक्ट आउट करें, और जो हमें वैल्यूज मिले, जो भी माइनस करने के बाद जो भी एलिमेंट्स जो सिमिलर होंगे वो डिडक्ट हो जाएंगे। और जब a माइनस बी होगा तो a के एलिमेंट जो बचे होंगे, दैट a में जो एलिमेंट्स हैं इट इज विच नॉट इन b, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट्री, b कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर यहाँ पे डिफरेंस के टर्म में आप बात करना चाहेंगे, तो अगर डिफरेंस के टर्म में देखें कि a में जो a की जो वैल्यू है वो 1 2 3 है, ठीक है। जो हमारा ए सेट है उसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, और बी जो हमारा सेट है उसमें ऑलरेडी सिर्फ 1 है। तो हम जब a माइनस बी करेंगे, क्योंकि a में क्या है 3 एलिमेंट है 1 2 3 और b में ऑलरेडी 1 है, तो a में ऑलरेडी 3 एलिमेंट है तो 1 1 तो माइनस हो जाएगा, बचे आपके 2 एलिमेंट 2 और 3। तो वही हमारा आंसर होगा जब हम डिफरेंस की बात करेंगे। तो हम जब डिफरेंस की बात करते हैं तो ये हमेशा याद रखा जाता है कि जो कॉमन एलिमेंट है ए और बी में वो डिडक्ट हो जाएंगे, लेकिन लिखा हमेशा वही जाएगा जो ए में होंगे। हमें ये नहीं पता, हमें ये नहीं चाहिए कि बी में जो अनदर एलिमेंट्स हैं वो हमें नहीं लिखने होते। जब हम वो अनदर एलिमेंट्स तब लिखे जाते हैं जब हम बी माइनस ए करेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल भी ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे, एक यूनिवर्स इन द टर्म एड्रेशन दिया गया है 1 2 3 4 5 6। ओके, जैसे एक यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 1 2 3 5 6, और ए की वैल्यू दे रखी है 1 2 3, और बी की वैल्यू दे रखी है 3 4 5 6। जब ए इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी में आपकी वैल्यू देखिए 3 कॉमन है तो 3 लिखा है। ए यूनियन बी की बात करें तो ये तीनों सारे एलिमेंट्स आपके आ गए। जब b माइनस ए की बात करें तो b माइनस ए में देखिए आपका टर्म है 3 4 5 6 है, और यहाँ पे आपका 1 2 3 है। तो 3 4 5 6 मतलब 3 ही कॉमन है, b माइनस ए हो रहा है तो 3 तो 3 डिडक्ट हो जाएगा, लेकिन जो b के बचे हुए एलिमेंट है वही हमारा आंसर होगा 4 5 6। जब a माइनस बी करते तो यहाँ पे 3 सिर्फ कॉमन एलिमेंट होता, तो जो हमारा a माइनस बी की वैल्यू होती वो क्या होती? 1 और 2 होती। ठीक इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो बी में वैल्यूज हैं, जैसे बी में जो वैल्यू है 3 4 5 6, और हमारा यूनिवर्स जो है वो 3 4 5 6 है, तो जो बी में नहीं है वो कौन है? 1 2 है। तो बी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 1 और 2 होगा। तो दैट इज अ फुल फॉर्म है। ए यूनियन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, बी माइनस ए माइनस बी क्या होता है, एंड व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बी। तो ये हमें यहाँ पे सीखने को हमें मिल रहा है।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, वेन डायग्राम। व्हेन द सेट इज रिप्रेजेंट इन थ्रू अ डायग्राम, तो हम उस डायग्राम को वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम में जब भी हम एक स्क्वायर के रिप्रेजेंट बात करते हैं, जैसे ये इस डायग्राम में आपका दैट इज अ रिप्रेजेंट ऑफ द स्क्वायर, ये स्क्वायर के अंदर दो सर्कल्स आपके बने हुए हैं, तो इस स्क्वायर को हम यूनिवर्स रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक यूनिवर्स है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और ए और बी एक ऐसे एलिमेंट है जो वेल डिफाइंड एलिमेंट्स हैं, मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ए और बी में कॉमन है। तो व्हेन वी डिफाइन द टर्म ऑफ द डायग्राम, diagrammatic form, so that is called be a Venn diagram. Okay, so what is the that is also define the relationship between the sets. It also defines the relationship between the set and these diagrams. The universal set represented by a rectangular form, and set defined in the circle form. Uh, and the when the both have a same elements, so that is in the term of intersection form. Okay, तो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, जैसे हमें इस सर्कल्स में जैसे हमारा यहाँ पे वेन डायग्राम दिखा, दैट इज अ रिप्रेजेंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो सेडेड पार्ट है दैट इज अ इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है दैट इज अ कॉमन एलिमेंट विच हैव ए एंड बी, और ये यूनिवर्स के अंदर ही है। ठीक है, दिस ऑल्सो ए यूनियन बी डायग्राम। बोथ एलिमेंट्स, कुछ ऐसे एलिमेंट है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कॉमन एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट ए में ऐसे हैं जो डिफरेंट है, बी में कुछ ऐसे एलिमेंट है जो डिफरेंट है। जब हमें ए यूनियन बी के टर्म में दिखाना होता है, तो हमारा जो भी ये शेडेड पोर्शन है दैट इज द टर्म डिफाइन है ए यूनियन बी। ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन और विच आर नॉट कॉमन, हम इसको हम यूनियन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनियन बी। अनदर वन देखिए, अनदर वन डायग्राम ए माइनस बी। ए माइनस बी को कैसे रिप्रेजेंट किया हमने यहाँ पे? ए माइनस बी का मतलब हुआ कि ए डिफरेंस बिटवीन ए डिफरेंस बी। तो जो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं, और ए के अंदर एक ऐसा एलिमेंट्स भी है जो कॉमन है, मतलब बी के अंदर भी है और बी में भी है, तो हमने क्या किया है, उस एलिमेंट्स को हटा दिया है। मतलब ये जो शेडेड पोर्शन होता है दैट इज रिप्रेजेंट ऑफ ए माइनस बी, और ये इधर का जो पोर्शन होता है, अगर इधर के पोर्शन को हम शेड कर दें तो दैट इज रिप्रेजेंट ऑफ बी माइनस ए। तो ए माइनस बी का टर्म है कि ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, हम उसको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज रिप्रेजेंट ए माइनस बी। दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्रू अ डायग्राम। सो क्योंकि ये इजिली होता है एंड आइडेंटिफाइड टू अ सॉल्विंग अ वेरी सिंपल क्वेश्चन थ्रू दीज डायग्राम्स, तो हम इसको आराम इजिली से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ये चीजें भी जानना जरूरी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जीक्यूटिव सेट्स क्या होते हैं। We say that a group of set is exhaustive of another set if their union is equal to that set. एक्सॉस्टिव सेट क्या होता है? जब हम दो सेट का यूनियन हमारा क्या होता है, इक्वल टू दैट सेट के होता है। तो ग्रुप ऑफ सेट इज एग्जॉस्टिव जब आप ग्रुप ऑफ सेट एग्जॉस्ट करते हैं कि दोनों का यूनियन हमारा इक्वल हो। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि ए और बी एग्जॉस्टिव हैं जब विद रेस्पेक्टिव टू सी, जब हमारा ए यूनियन बी जो हो वो इक्वल हो सी के। इक्वल का मतलब यहाँ पे है ये है कि जब ए और बी के अंदर वही एलिमेंट है जो सी के अंदर एलिमेंट है, दैट इज एग्जॉस्टिव एलिमेंट्स, एग्जॉस्टिव सेट्स। मतलब ए यूनियन बी को हम कर रहे हैं और हमारे अंदर वही एलिमेंट मिले जो सी के अंदर भी एलिमेंट्स थे, तो यहाँ पे जब दोनों के एलिमेंट सेम होंगे दैट इज एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जब हमारे सेट्स के एलिमेंट्स इक्वल नहीं होते हैं, मतलब इंटरसेक्शन इन द टर्म्स हमारा क्या होता है, नहीं होता है। सेट हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन, हमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं मिलता है, मतलब दोनों सेट्स के अंदर कोई भी एक एलिमेंट्स हमें कॉमन नहीं मिल रहा है, या हमारा जो दोनों का इंटरसेक्शन है दैट इज अ एम्प्टी सेट है, तो दैट इज कॉल्ड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वेरी क्लियर नाउ। एग्जॉस्टिव इवेंट जब दो सेट्स का यूनियन तीसरे सेट के इक्वलेंट हो जाता है, इक्वल हो जाता है, मतलब सेम एलिमेंट्स आते हैं, दैट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जब हमारे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलता है, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ओके, तो इसको हमने वेन डायग्राम से यहाँ पे फिर से मैं डिफाइन करना चाहता हूँ कि पूरे वेन डायग्राम में क्या डिफाइन होता है। जो हमारा ये पूरा पोर्शन है दैट इज रिप्रेजेंट ऑफ ए यूनियन बी के टर्म में रिप्रेजेंट करता है, मतलब दोनों के जो एलिमेंट्स होते हैं वो यूनियन के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं।
जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो ये बीच का जो कॉमन एक इंटरफेस होता है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, दैट इज रिप्रेजेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी हमेशा इस पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब डिफरेंस की करने के बाद ए माइनस बी इस रिप्रेजेंट को करेगा और बी माइनस ए इस पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जब भी हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो हमारी जो भी वैल्यूज होती हैं वो इन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। जब हम दो सेट पे ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं ये सिर्फ दो सेट की बात हो रही है, ए और बी की बात का। अगर यही तीन अगर सेट की बात होगी तो तीन सेट में ये डिफरेंट पोर्शन में चले जाएंगे। तो इस डायग्राम से वेरी क्लियर कि व्हाट इज ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, एंड व्हाट इज ए माइनस बी, व्हाट इज बी माइनस ए, ये वहाँ पे बड़ा क्लियर हो जाएगा। तो इसको आगे हम किसी क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। जैसे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट की बात हो रही है, ए माइनस बी, बी माइनस ए। तो यहाँ पे ये देखिए इन्होंने यहाँ पे ए माइनस बी होता है, ये बी माइनस ए उसी को रिप्रेजेंट किया है। तो जब भी ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन होता है तो हम ये दोनों के ही वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन को हम हटा देते हैं। तो वो जब भी हमारा इस टर्म के यूनियन को रिप्रेजेंट किया जाता है तो दैट इज डिनोटेड बाई डेल्टा, इसको हम कहते हैं डेल्टा, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस को हमेशा हम क्या करते हैं, डेल्टा के टर्म में डिफाइन करते हैं। तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए को हम डेल्टा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो ये डायग्राम बना हुआ है, ये आपका ए जो डायग्राम है ये ए माइनस बी है, और ये जो शेडेड एरिया है दैट इज अ बी माइनस ए। तो यहाँ पे जब डेल्टा है तो हम दोनों का यूनियन कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। नेक्स्ट सेटअप की बात करते हैं, जब दो सेट्स के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होता दैट इज कॉल्ड बी डिसजॉइंट सेट, ठीक है। मतलब एलिमेंट सही नहीं है, जुड़े हैं ही नहीं, दे आर नॉट ज्वाइनिंग टू ईच अदर विद एन कॉमन एलिमेंट्स, तो हमारे ऐसे क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो इसको वेन डायग्राम के थ्रू हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे यूनिवर्स है हमारा, यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम स्क्वायर के टर्म में जो, और ए और बी जो दो एलिमेंट्स हैं, दो सेट्स हैं, वो दोनों ही डिफरेंट है। तो डिफरेंट है, वो अलग अलग बने हुए हैं, अंदर के अंदर एलिमेंट जो है वो अलग अलग हैं। तो ये हमारा सेट क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। कॉम्प्लीमेंट की बात करी थी हमने लास्ट टाइम में, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट जब भी हमारे यूनिवर्स में अगर कोई भी सेट हमारा ए है तो ए हमारा जो सेट डिफाइन कर रहा है वो ए ये है, और जब जो नॉट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट ए, तो जब भी कॉम्प्लीमेंट के टर्म में बात आएगी तो ए डैश लिखा जाता है या ए कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है, अपॉन भी होता है, तो दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो शेडेड पोर्शन है दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, जो क्योंकि यूनिवर्स से ही ए बना होगा, तो जो यूनिवर्स में जो एलिमेंट्स हो जो ए में नहीं है दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बिहार पे देखिए वेन डायग्राम में जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जब दो सेट की बात हो रही हो या तीन सेट की बात हो रही है, तो उसके बिहार पे क्वेश्चन देखिए कैसे होता है। जैसे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि एक ग्रुप है 60 पीपल है, जिसमें इन अ ग्रुप ऑफ 60 पीपल 40 स्पीक हिंदी, 20 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, and all people speak at least one or two language. How many people speak only English and not Hindi, and how many speak English? तो यहाँ पे बड़ा क्लियर मेंशन दे रखा है कि जो ग्रुप में है वो 60 पीपल हैं और 40 पीपल क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं, और 20 ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं, और हर एक इंसान क्या करता है, दोनों लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज जरूर बोलता है। तो जब भी हम ऐसा बनाते हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि कॉमन क्या है हमारा। जैसे तो कॉमन जो हमारा ये है वो 20 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो ये जो कॉमन एरिया है इसको हम क्या करते हैं 20, क्योंकि बोथ इंग्लिश एंड हिंदी तो मतलब होता है इंटरसेक्शन, कॉमन चीज। तो जो हमारा इंटरसेक्शन आ रहा है वो क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब यहाँ पे बोला गया लेट टोटल पीपल हैं जो 60 हैं, हिंदी कितने बोल लेते हैं 40 बोल लेते हैं, इंग्लिश और हिंदी स्पीक जो बोल लेते हैं 20 है। तो पूरा जो भी वैल्यू है हमारी वो हिंदी की कितनी, अगर हिंदी को हम ए सेट मान ले तो हिंदी बोलने वालों की कितनी संख्या है 40 है, और क्योंकि इंटरसेक्शन हमें क्या दे रखा है 20 दे रखा है, ओके इंटरसेक्शन दे रखा है, और ए यूनियन बी का मतलब हुआ जो पूरा पोर्शन हमारा है वो 60 का है, ठीक है। तो अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू डिफाइन करें तो 20 तो यही हो गया, और प्योर हिंदी बोलने वाले मतलब ये प्योर हिंदी बोलने वाला मतलब ए, ये तो 40 की संख्या हो गई, तो 20 20 40 हो गया, तो बचा कितना आपका 20 ही बचा। तो डायरेक्ट आंसर आपका 20 ही है यहाँ पे, मतलब आपके तीन टर्म डिवाइड हो गया 20 20 के टर्म में। अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, इसका फॉर्मूला होता है ए एन यूनियन ए बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए एन इंटरसेक्शन बी। आपको सारी वैल्यूज दे रखी हैं, आप तभी वैल्यूज निकालेंगे 40 आएगी, 60 प्लस 80 माइनस 40 करेंगे 40 वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको ये पूछा गया है कि हाउ मैनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश। तो अगर हिंदी के 20 हैं तो इंग्लिश के भी 20 होंगे जो सिर्फ इंग्लिश ही बोलते होंगे, क्योंकि इंग्लिश नॉट हिंदी बोला है, तो इंग्लिश से बोलने वालों की संख्या कितनी हो गई 20 हो गई।
ओके। तो और हाउ मैनी पीपल इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, तो ऐसे कितने हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, तो टोटल मिला के हमारे 40 ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। सिर्फ इंग्लिश बोलने का मतलब नहीं कि उसमें 20 ऐसे भी हैं जो हिंदी बोल लेते हैं, पर हमसे पूछा गया इंग्लिश कितने लोग बोल लेते हैं, तो दोनों हम कंबाइन करके चलेंगे। अगर हमसे पूछा जाता है कि सिर्फ इंग्लिश कितने बोलते हैं, तभी हम 20 यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब वेन डायग्राम में जो सबसे टिपिकल क्वेश्चन होते हैं वो 3 के होते हैं, मतलब 3 वेरिएबल्स पे जब ये क्वेश्चंस आते हैं, 3 सेट्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं तब है। तो जैसे इस लास्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे डिफाइन किया है कि एक क्लास है 175 स्टूडेंट्स। क्लास में कितने हैं 175 स्टूडेंट हैं, और कुछ फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं वो आपको देखने हैं। तो मैथमेटिक्स पढ़ने वालों की संख्या 100 है, फिजिक्स पढ़ने वालों की संख्या 70 है, केमिस्ट्री की 46 है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स की 30 है, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की 28 है, फिजिक्स और केमिस्ट्री 23 है, मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 18 है। तो पूछा गया है कि कितने स्टूडेंट मैथमेटिक्स में अलोन इंक्लूड हुए हैं, फिजिक्स में अलोन है कितने, केमिस्ट्री में अलोन है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव नॉट ऑफर एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट्स, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऑफर लिया ही नहीं है। तो हमने क्या किया है, 3 ग्राफ बनाया, 3 सर्किल बनाया है। 3 सर्किल मतलब 3 अलग अलग बनाए हैं। तो एक हमारा फिजिक्स है, एक हमारा केमिस्ट्री है, एक हमारा मैथ है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है जो यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे डिफाइन करना जरूरी हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो हम यहाँ पे डिफाइन करना होगा, दैट इज अ फिजिक्स, दैट इज केमिस्ट्री, दैट इज मैथ। ओके। तो इसमें बोल रहा है कि मैथमेटिक्स से कितने स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट्स है। मैथमेटिक्स से कितने, 100 स्टूडेंट। अगर हम ये पोर्शन मैथमेटिक्स का लेते हैं, सिर्फ ये वाला पोर्शन मैथमेटिक्स का लेते हैं, तो इसका मतलब है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इजकल टू 100। तो हमने यहाँ पे क्या किया, a प्लस बी प्लस सी डी इजकल टू 100 लिखा है। जितना भी हमारा अंदर का पोर्शन है उसको हमने अल्फाबेट के थ्रू शो कर दिया है। तो जब 100 की बात कर रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी डी इजकल टू 100। फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं, 70 है। 70 का मतलब हो गया फिजिक्स पढ़ रहे हैं 70 है, तो हम ये मान लेते हैं ये हमारा फिजिक्स है। ठीक है, ये आपका मैथ हो गया, दैट इज अ फिजिक्स, और ये केमिस्ट्री है। यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन ये डिफाइन होना चाहिए था यहाँ पे कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री। तो ये मैथ का टर्म है, यहाँ पे मैथ डिफाइन है, तो मैथ में आपको कितना हो गया, ये हो गया। फिजिक्स का टर्म की बात करेंगे, फिजिक्स कितने हैं, बी सी ई एफ 70 है। तो आप ये अगर फिजिक्स का पढ़ेंगे तो फिजिक्स कितने लोग पढ़े हैं, 70 लोग, तो बी सी ई एफ 70 है। केमिस्ट्री कितने पढ़े हैं, 46, तो 46 कौन है, डी सी एफ जी, दैट इज अ 46। ठीक है, और मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ने वाले 30 है, तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ने वाले कितने, 30 है, तो बी प्लस सी इज कल 30। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले 28 है, तो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री मतलब यहाँ पे, और ये सर्किल और ये इसका कॉमन क्या है, डी प्लस सी, तो डी प्लस सी कितना हो गया आपका, सी प्लस डी है 28। तो इसी तरह फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री सी प्लस एफ, सी प्लस आपका 23 है। तो तीनों कॉमन लेने पढ़ने वाले कितने, 18 है। तो इन जब हम ये बना लेंगे तो हमारी सी की वैल्यू मिली है, इसके यहाँ पे हम सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो हमारी जो वैल्यूज निकलेंगी वो सी इजकल टू 18 होगी, एफ 10, एफ 5 आ रही है, डी 10 आ रही है, बी 12 आ रही है। तो इस तरह से हमारी वैल्यूज आ गई हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन अ मैथमेटिक्स अलोन। तो मैथमेटिक्स में कितने लोगों ने अकेले किया, तो मैथमेटिक्स में अकेले ए, तो ए की वैल्यू कितनी है, ये 60। फिजिक्स में अलोन कितने लोगों ने किया है, तो ई की वैल्यू कितनी है, 35। और केमिस्ट्री में कितना किया है, तो जी इक्वल 13। इसी तरह से पूछा गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया है, तो हमने क्या किया, सारे सब्जेक्ट जो भी हमारे वेरिएबल्स थे उन सबकी वैल्यूज को हमने प्लस कर दिया और माइनस कर दिया 175 से। तो हमारी जो वैल्यूज आ गई वो 32 आ गई। तो इस तरह से हम जब भी इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें ये डिफाइन करना होता है कि अंदर वेरिएबल्स को हम क्लियरली डिफाइन करें और उसको हम इक्वेशन के टर्म में सही से सॉल्व करें। ठीक है, इसके बाद हमारे जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं वो आप सॉल्व करिएगा। मैंने ये ऑलरेडी क्वेश्चंस दे रखे हैं, ट्राई करिए इनको क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इनकी वैल्यूज निकालने का, यूनियन, इंटरसेक्शन, ए माइनस बी माइनस ए, और ए आपका डेल्टा बी निकालने की वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज, आपको फॉर्मूलेज मिल जाएंगे। इसके अलावा फंडामेंटल लॉ ऑफ अलजेब्रा है जिसको हम बाद में डिफाइन करेंगे। अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही करते हैं। इसके बाद कुछ फॉर्मूलेज ऐसे हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमें थोड़ा सा सोल्यूशन करना पड़ेगा, तो उस चीज़ को हम बाद में डिफाइन करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, मीट नेक्स्ट क्लास in term of fundamental law of algebra.